اگر آپ والدین ہیں تو آپ اس دنیا کے بہت خوش نصیب ترین انسان ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک موقع ہے اپنی تمام تر خواہشات کو دوبارہ سے پورا کرنے کا۔ آپ کے پاس موقع ہے زندگی کو ایک نئی جہت سے جینے کا۔ آج ہے بچوں کا عالمی دن اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آمنہ احسن۔ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ زندگی کو اپنے حساب سے جینے کا موقع مل جاتا ہے جب ہم والدین بن جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ اس سے، بلکہ موسٹلی لوگ اس سے یہی اخذ کر لیتے ہیں کہ ہم بچوں پہ اپنی تمام تر خواہشات کا بوجھ ڈال سکتے ہیں، اور اگر ہم کسی پروفیشن کو اپنا نہیں سکے تھے، کوئی کام نہیں کر سکے تھے، تو وہ ہم بچوں پہ ڈالیں گے کہ اب تم نے یہ کرنا ہے، حتیٰ کہ اس کا بالکل ایسا مقصد نہیں ہے۔ جب ہم لوگ جوان ہوتے ہیں، جب ہم لوگ اب جوانی کی دہلیز پار کرتے ہیں، ہم بہت سارے خواب دیکھتے ہیں، ہماری خواہشیں ہوتی ہیں، زندگی کو اپنے لحاظ سے گزارنے کے خواب دیکھتے ہیں ہم، اور تب ہمارے والدین جسے آج ہم فکر مند ہو جاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، ویسے ہی وہ فکر مند ہوتے ہیں یا نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں یا بیکورڈ ہوتے ہیں۔ آپ مثبت لفظ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور منفی لفظ کا بھی، لیکن میرے خیال سے وہ بس ہمیں لے کے اوور پوزیسو ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک بہترین فیوچر ہمارا بن سکے، ایک مناسب قسم کی انکم آ سکے، زندگی بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہم گزار سکیں، اسی لیے وہ کبھی ہماری خواہشات پہ، کبھی ہمارے خوابوں پہ تدخن لگا دیتے ہیں کہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جناب آپ کا اس میں کوئی خاص فیوچر ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ جب ہم والدین بنتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ موقع جو ہمارے والدین نے ہمیں نہیں دیا تھا، وہ ہم اپنے بچوں کو کیسے دے سکتے ہیں، اور بہترین طور پہ ہم اپنے بچوں کو یہی ایک تحفہ دے سکتے ہیں کہ انہیں کسی حد تک ان کے حساب سے زندگی گزارنے دی جائے۔ پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ چلڈرن ڈے جو ہے، انٹرنیشنل چلڈرن ڈے، یہ کب سے منایا جا رہا ہے۔ اچھا، انٹرنیٹ پہ آپ تھوڑی تحقیق کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ 1857 سے 1897 سے منایا جا رہا ہے۔ پہلے اس کو جون کے سیکنڈ ویک میں منانے کا ارادہ رکھا گیا، اور کافی عرصے تک اس کو جون کے سیکنڈ ویک میں ہی منایا گیا، لیکن آن ورڈ 2000 سے لے کے آن ورڈ اس کو نومبر کے مہینے میں منایا جاتا رہا ہے، اور اب کچھ عرصے سے اس کو 20 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ پہلے اس دن کے مناسبت سے جب جون میں بھی اس کو رکھا گیا تھا اور اب بھی رکھا گیا، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ چھٹی کی جائے، انٹرنیشنل ہالیڈے دی جائے بچوں کے حوالے سے، لیکن پھر اس کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا۔ اب بھی کچھ ممالک ہیں جہاں آج کے دن پبلک ہالیڈے ہوتی ہے۔ اس دن کا مقصد یہ تھا کہ وہ بچے جو اپنے گھریلو سطح سے لے کے تعلیمی اداروں تک یا جہاں وہ کام کرتے ہیں، وہاں پر وہ لوگ اپنے جو سہ رہے ہیں، جو برداشت کر رہے ہیں، چاہے وہ فزیکلی ابیوز ہے، چاہے وہ مینٹلی ابیوز ہے، اس کے اوپر آواز اٹھائی جائے، چائلڈ لیبر پہ بات کی جائے، بچوں کے حقوق کے اوپر بات کرنے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ہمارے ٹی وی اسکرین پہ ہمیں کچھ دکھتا ہے، نہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ کچھ دکھتا ہے، ہمارے پبلک اسپیکرز سے لے کے بہت کم لوگ ہیں جو اس بارے میں، اس متعلق کچھ بھی بات کرتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہمارے گھروں میں اس کو لے کے بات نہیں ہوتی۔ ہمارے والدین، ہمارے جو بڑے ہیں، وہ ڈیلی بیسس پہ بچوں کے حقوق پر کبھی بات نہیں کرتے، انہیں بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس بارے میں کوئی ریسرچ نہیں ہوتی، کوئی آئیڈیاز نہیں ہوتے، یا اپنے بارے میں سوچا کہ میں نے یہ کیا تھا تو میں پھنس گیا تھا، تو میں بچے کے ساتھ یہ کر لوں گا، یا بچے کے ساتھ یہ نہیں کروں گا، یا پھر نانی دادی ساس ماں نے جیسا کہا ویسا کر لیا۔ تو کوئی خاص اسپیسیفک سوچ سمجھ کے ساتھ کام نہیں لیا جاتا، جس کی وجہ سے بچوں کی بنیاد ہی کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ یہ بات کی جاتی ہے اور یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بچوں کو اگر ہم اپنی مرضی کا سب کچھ اپنی ان کی مرضی پہ ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ خراب ہو جائیں گے، وہ ہمیں کچھ اہمیت نہیں دیں گے، یا وہ زندگی کو لے کے سیریس نہیں ہوں گے۔ بچوں کے لحاظ سے ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدھی سی زندگی ہے۔ والدین جیسے ہی بچہ تھوڑا ہوش سنبھالتا ہے، اس کو ڈھیر ساری مار پیٹ کرتے ہیں یا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اور اس کو بتاتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا لائف میں اور یہ کرنا ہے، اور جو بچہ اس ٹریک پہ چلتا ہے اسے فرما بردار کہتے ہیں، اور جو بچہ نہیں چلتا ہے اسے ہم باغی کہتے ہیں یا نافرما بردار کہتے ہیں، یا ایسی بہت ساری باتیں کرتے ہیں جس سے اس کا جو ساری کی ساری ساکھ ہوتی ہے وہ تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ اچھا، یہاں والدین بھی مکمل غلط نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اوپر اتنا معاشرے کا ایک پریشر ہوتا ہے
अच्छी तरबियत का, अच्छे मार्क्स का, कि वो उस बचपन को, उस लाइफ को इंजॉय ही नहीं कर पाते, बल्कि उनको बस ये फिक्र पड़ जाती है कि हमारी परवरिश पे ये ना हो कि आज से 10 साल, आज से 15 साल बाद हमारी परवरिश पे सवाल उठाया जाए। इस दुनिया का सबसे खूबसूरत लम्हा है, आप वालिदैन हैं या खाला, मामू, चचा, पप्पो, दादा दादी, नाना नानी, कुछ भी हैं, आपको इस बात का अच्छे से अंदाज़ा होगा कि इस दुनिया में सबसे जो खूबसूरत तरीन लम्हात में से एक लम्हा है वो ये है कि आपकी औलाद, आपका कोई प्यारा सा बच्चा इस दुनिया में कदम रखता है और आपकी गोद में पहली बार आता है। मैं चाहूँगी कि सब एक दफ़ा उस लम्हे को रिपीट करें जब पहली बार आपने अपने किसी भी अपनी औलाद को या अपने करीबी रिश्ते में से किसी भी बच्चे को पहली बार गोद में लिया हो। वो ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन लम्हा होगा यकीनन। अच्छा, जैसे ही वालिदैन को मैं ख़ास तौर पे स्पेसिफ़िकली कहूँगी कि जैसे ही वो उस बच्चे को गोद में लेते हैं, अभी उस ज़िंदगी को, भी उस लम्हे को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो एक करैक्टर आता है। वो करैक्टर हमारा प्यारा होता है, हमसे हमें अजीज़ रखता है, हमसे मोहब्बत करता होता है, लेकिन वो करैक्टर आके हमें बताता है, वो नाना नानी, दादा दादी, दोस्त अहबाब कोई भी हो सकता है, वो हमें बताता है कि भाई अपना ठीक है कि तुम बाप बन गए हो या तुम माँ बन गई हो और बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ना तुम्हारी अपनी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है। अच्छा, दो बातें जो हम बहुत करते हैं, एक ये कि तुम्हारी अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, और एक ये बात कि जनाब तुम्हारे पर बड़ी ज़िम्मेदारी पड़ गई है। अच्छा, वो इंसान, वो बाप जो अभी चंद लम्हे पहले अपने बेटे या बेटी को गोद में लेके बहुत ही खूबसूरत से कुछ ख्वाब बन रहा होता है, वो अचानक ज़िम्मेदारी लफ्ज़ सुन के पैम्पर्स और फीडर और दूध और तालीमी मामलात में कहीं खो जाता है। इसी तरह माँ का हाल है कि माँ भी इस डर और इस खौफ में मुब्तला हो जाती है कि अब मैं इसकी माँ हूँ और मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और भाई मैं तो काम से गई। बाकी की जो ज़िंदगी है वो यही साबित करने में गुजर जाती है कि हाँ, हम बहुत अच्छे वालिदैन हैं, हमने अपने बच्चों पे मुकम्मल तवज्जो दी है, हमने अपने 24 आवर्स 24/7 उनका साथ दिया है, उनके कामों में, उनकी परवरिश में गुजारा है, उनकी तालीम के लिए बेस्ट स्कूल, बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो सिलेक्ट किया है, और पूरी कोशिश की है कि हम उन्हें एक बेहतरीन इंसान बना के सामने ले आएँ। अच्छा, ये जो स्ट्रेस है ये एक तो हमें बीमार करता है, वालिदैन को या आसपास जो भी गार्डियन होता है उसको बीमार कर देता है। दूसरा, बच्चों पे इसके निहायत ही मनफी असरात होते हैं। हमारे 90% घरों का, जी हाँ 90% घरों का माहौल ऐसा है जैसे फैमिली में एक फ़ौजी मेस होता है। मतलब आप वहाँ एंटर होते हैं, वालिदैन आपको ऐसा वो करते हैं कि आप स्कूल से आए हैं, आप ये करें, अब ये करें, अब यूँ करें, अब यूँ चलना है, अब यूँ सोना है, अब यूँ पढ़ना है, और एक एक नंबर के पीछे क्योंकि अगेन मैं बार बार ये बात कहूँगी, सोसाइटी प्रेशर इतना है, तालीमी इदारों में आगे मौके नहीं फराहम होते अगर आपके मार्क्स, आपकी जीपीए एक ख़ास सतह पे नहीं पहुँचती, तो इसलिए वालिदैन स्ट्रेस लेते हैं हर बात का, हर चीज़ का, कि कहीं हमारा बच्चा इर्द गिर्द के बच्चों से पीछे ना रह जाए और कहीं वो इन फ्यूचर किसी भी किस्म के मॉनिटरी या फाइनेंशियली मसाइल का शिकार ना हो। अब आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बच्चे की परवरिश नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बच्चे पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बच्चे को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, या ऐसा भी नहीं है कि बच्चे की जीपीए हमें नहीं चाहिए। बात यह है कि वो सारे काम जो हम एक ख़ास किस्म की स्ट्रिक्टनेस में रख के करते हैं, वो सारे काम जो हम सर पे डंडा रख के करते हैं, वो हम बड़े आराम और सुकून के साथ भी कर सकते हैं। आप बहुत आराम और सुकून के साथ भी एक बच्चे को बेहतरीन तालीम दिला सकते हैं, उसकी तरबियत कर सकते हैं, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखा सकते हैं। उसका जो पहला गोल है आपका, वो ये है कि आप जो करते हैं बच्चा वही करता है। तरबियत का सबसे पहला पहलू ये है कि आप जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा ना करे वो आप खुद ना कीजिए, और आप जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा करे वो आप खुद अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। घर का माहौल जैसा होगा बच्चा उसी में परवरिश पाएगा, वैसा ही रिएक्ट करेगा, वही आदत अपनाएगा जो उसके वालिदैन की हैं, उसके इर्द गिर्द के लोगों की हैं। अच्छा, वो मिसाल तो सबने सुनी है, बल्कि वो एक लतीफ़ा है कि भाई वालिद साहब बेटे को कहते हैं कि जी तुम बाहर जाओ, मेरा दोस्त आया है, उससे जाकर कहो कि मैं घर में मौजूद नहीं हूँ। और वो बच्चा जब जाके ये कह देता है तो उसको अंदर आके कहते हैं बेटा झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, तुमने कभी झूठ नहीं बोलना। तो भाई आप खुद सोचें कि जिस बच्चे के सामने आपने झूठ बोला है, आप उसके रोल मॉडल हैं, भला वो कैसे ज़िंदगी में
किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए झूठ नहीं बोलेगा। तो जनाब, ये सबसे अहम और सबसे पहला पॉइंट है कि जैसा आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं वैसे आप खुद हो जाएं। झूठ बोलना नहीं देखना चाहते, ना बोलें। कि कुतुब बीनी की आदत डालना चाहते हैं, खुद किताबें पढ़िए, अपने घर में अखबार रखिए, अखबार पढ़िए तो वो अखबार पढ़ेगा, किताबें पढ़ेंगे तो वो किताबें पढ़ेगा। वो झूठ नहीं बोलेंगे तो वो झूठ नहीं बोलेगा। लोगों से खुश अखलाक़ी से पेश आएंगे तो वो लोगों से खुश अखलाक़ी से पेश आएगा। अपने इर्द गिर्द लोगों की इज़्ज़त करेंगे तो वो भी करेगा। बद अखलाक़ी से पेश आएंगे तो वो बद अखलाक़ बन जाएगा। अपने इर्द गिर्द लोगों की तज़लील करेंगे तो वो भी माशरे में एक मनफी पहलू, एक मनफी मिसाल बनकर उभरेगा। पॉइंट ये है कि बच्चे के ऊपर तालीम के लिहाज से ज़्यादा बोझ ना डाला जाए। कोशिश करें कि उसका ऐसे स्कूल में, ऐसे इदारे में, तालीमी इदारे में एडमिशन हो जहाँ उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ या कोई हॉबी और भी करने को मिल सके। सिर्फ़ और सिर्फ तालीम का बोझ एक बार उसके ऊपर ना डाला जाए। इससे ये होगा कि बच्चा अच्छे से ग्रो कर सकेगा, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फौरी तौर पे बहुत स्ट्रेस नहीं मिलेगा। अच्छा, साथ ही साथ बहुत ही एक अहम बात है और वो ये है कि अपने बच्चों को एक हॉबी की आदत डालिए। देखिए कि आपका बच्चा क्या बेहतरीन तौर पे कर लेता है। वो एक आर्टिस्ट बन सकता है, वो बुकवर्म है, या ऐसी कोई भी चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। पेंटिंग कर सकते हैं कुछ बच्चे, कुछ कुकिंग में इंटरेस्ट लेते हैं। वो जो भी कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इन फ्यूचर उस चीज़ को एज अ पेशा अपनाए। लेकिन अगर उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और आप उस चीज़ को इन अ लिमिटेड किसी भी तरीके से थोड़ा सा टाइम वो निकाल सकता है। हर कोई अपने 24 घंटों में से ये वक्त निकाल सकता है। मुझे शौक़ है, मैं लिखती हूँ, ये मेरा पेशा नहीं है, मैं बात करना चाहती हूँ, मैं करती हूँ, तो मैं अपने 24 घंटों में से ये थोड़ा सा वक्त निकाल लेती हूँ। इसी तरह हम अपने बच्चों का शेड्यूल इस तरह बना सकते हैं कि उनको अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, कोई हॉबी है, तो उनकी रूटीन को इस तरह बनाएं कि वो थोड़ा सा वक्त इस चीज़ को दे सकें, अपने शौक़ को दे सकें। ऐसे ये सब कुछ करने से ये होगा कि वो बच्चा अपनी तालीम पे ज़्यादा फोकस्ड होगा। आप ये देखेंगे कि क्योंकि उसका शौक़ पूरा हो रहा है तो वो अपनी तालीम पे ज़्यादा ध्यान देगा। अच्छा जी, वालिदैन को सबसे पहले तो ये एक बात समझनी पड़ेगी कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का जिस तरफ ध्यान हो या जो चीज़ वो चाहे कि मैं एज ए प्रोफेशन अपनाना चाहूँ, वो आप उसको उसी पे कह देंगे हाँ ठीक है तुम उसको प्रोफेशन अपना लो। पहली बात, आप बच्चे को ये अवेयरनेस दें कि उसको किस किस किस्म के मसाइल का वो शिकार हो सकता है इस प्रोफेशन को अपना के। और दूसरी बात, आप अपने बच्चे को हमेशा ये आइडिया दे सकते हैं कि तुम अगर इस प्रोफेशन को एज अ मिनी प्रोफेशन ना अपनाओ, एज अ हॉबी या साइड बिजनेस रखो, तो तुम इसको साथ लेके अपने काम काज के चल सकोगे ना। तुम्हें एक सिक्योर, जो हम चाहते हैं कि तुम्हें एक सिक्योर फ्यूचर दे सकें, तुम्हारे पास वो भी होगा और साथ साथ तुम अपनी ख्वाहिश को, अपनी हॉबी को भी लेकर अपने साथ चल सकोगे। सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वालिदैन के जो फ़राइज़ में शामिल है वो ये है कि आप अपने बच्चों से बात कीजिए। बहुत सारे मसाइल हैं जिनसे आप अपनी जवानी में सामना था आप सबको, हम सबको आज भी उनका सामना है, उनसे ज़्यादा मसाइल का सामना है। तो हम सबको चाहिए कि हम वालिदैन को ख़ुसूसन ये चाहिए कि वो अपनी बात अपनी औलाद से बात करना शुरू करें। जब आप अपनी औलाद से बात डिस्कस करेंगे, उनसे ख़ास किस्म का फ्रैंकनेस लेवल बनाएंगे ताकि वो बात कर सकें आपसे, तो आप यकीन जानिए कि बहुत सारे मसाइल का आपको लगेगा कि हल निकल रहा है। चाहे वो तालीमी मेयार से लेके तरबियत तक और तरबियत से लेके बहुत सारे इमोशनली मसाइल तक जब बच्चे आपसे शेयर करेंगे तो आप एक रिलीफ महसूस कर सकेंगे और आपके बच्चे एक रिलीफ महसूस कर सकेंगे। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जान सकें कि कहाँ आपको बच्चे का दोस्त बनना है, कहाँ आपको बच्चे का उस्ताद बनना है और कहाँ आपको बच्चे को एक बाप या माँ की तरह इमोशनली ट्रीट करना है। बिल्कुल सही कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि वालिदैन बनना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन इस ज़िम्मेदारी को स्ट्रेस के साथ निभाने से बेहतर है कि आप इसको खुश दिली के साथ एक रिलैक्सेशन मोड पे चलाएं ताकि आपका घर एक खुशहाल घराना बन सके। आप मुस्बत होंगे, आपके बच्चे मुस्बत होंगे तो माशरा मुस्बत होगा। थैंक यू सो मच।